Hello everyone and welcome back to Elite Link Online. So in this video we are going to start with a new chapter called as Playing with Numbers. यानी हम numbers के साथ करने वाले हैं खिलवाड़. Okay, let's see everyone. अच्छा, let me give you a basic idea. फिलहाल इस chapter में we have 4 exercises, exercise A, B, C and D. Out of which I am starting with directly with the exercise 5C. Yes, A और B exercises को भी फिलहाल होल्ड पे डाला हुआ है. आई विल स्टार्ट विद द एक्सरसाइज 5C फॉर अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजन बिकॉज इस एक्सरसाइज में जो सम्स है ये सम्स आपके लिए नए नहीं है. ओके, these are the very basics that you have already done in your lower standard, 7th standard, 6th standard, 5th standard. So for that very reason I am going to start with the exercise 5C. 5C का ही continuation है exercise 5D. So we are going to go in this order. पहले हम 5C करेंगे, फिर D करेंगे, then we'll move on to 5A and 5B. Okay? Just to maintain the difficulty order of this chapter, for this very reason, I'm starting with the exercise 5C. Okay? Now, let's begin with the sums directly, because as soon as I start the sums, you will definitely recollect a lot of concepts. But of course, even if you fail to recollect these concepts, I will be explaining to you that also in very detail. शुरू करेंगे with the very first question of exercise 5C. और क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार. Find which of the following numbers are divisible by 2. Okay everyone, so now I am very sure you will recollect how to do this. Yes, the topic that we are going to be studying is divisibility tests. Okay, देखिए divisibility tests हम क्यों पढ़ते हैं? Because it's a shortcut method, a convenient method of identifying whether a given number is divisible by the simple numbers like 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, etc. etc. Okay, so what is the easiest trick here by the way? अगर हमें चेक करना है कोई भी नंबर divisible by 2 है कि नहीं है, the concept is let me show you here. Okay, now first one is by 2. How do you identify any number is divisible by 2 or not? Okay, that is done by checking the unit digit of that number. Unit digit of that number should be 0, 2, 4, 6 और 8. अगर आपके नंबर का यूनिट डिजिट ओके यानी सबसे लास्ट वाला डिजिट अगर है या तो 0, 2, 4, 6 या 8 में से कुछ, तो डेफिनेटली वो पूरा नंबर बिना डिवाइड करे हम बोल सकते हैं कि इट इज डिविजिबल बाय 2. कितना बड़ा भी नंबर क्यों ना हो. फॉर एग्जाम्पल द नंबर 197544327 सी इतना बड़ा नंबर है. आई डोंट इवन नीड टू एक्चुअली डिवाइड. आई कैन सिंपली चेक द यूनिट डिजिट. द डिजिट इज 8. ओके, सो वी कैन से फॉर श्योर कि इस पूरे नंबर को डिवाइड करने का जरूरत नहीं है. अगर तुम्हें सिर्फ जानकारी चाहिए कि ये नंबर डिविजिबल बाय 2 है कि नहीं, तो द आंसर इज यस. ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा. करना तो नहीं है, हाँ हो जाएगा. ओके एवरीवन, सो दैट इज कॉल्ड एज अ डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2 एंड इट इज ऑब्वियस. जाहिर सी बात है, अगर तुम्हारे यूनिट डिजिट में 0, 2, 4, 6 या 8 नहीं आया तो that number will not be divisible by 2. Okay everyone, so that is the concept of divisibility tests.
एज यू क्लियरली अंडरस्टैंड, इतने बड़े बड़े नंबर्स अगर है तो सच में डिवाइड करने नहीं बैठ सकते, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। अब ये कितना कन्वीनियंट हो गया, सिर्फ एक डिजिट देखो और बोल दो डिविजिबल है कि नहीं है। दैट इज द पर्पस व्हाई वी आर स्टडीइंग द डिविजिबिलिटी टेस्ट्स। इट डज सेव अ लॉट ऑफ योर टाइम, आपका टाइम डेफिनेटली बहुत सारा बचा देता है। ओके, सो नाउ एवरीवन वी विल राइट डाउन, मतलब वी विल स्टार्ट सॉल्विंग द सम्स। अच्छा, इसमें से देयर आर 4 different questions presented to us. We will be solving the second one where we have the number 1660. Okay, so we have to write down the answer. The answer is yes, this number is divisible by 2 as the unit digit is 0. ओके एवरीवन, तो इतना हमें लिख देना है, यूनिट डिजिट हमारा 0 है इसीलिए ये नंबर डिविजिबल है। नेक्स्ट इज द फोर्थ वन 2079। ओके एवरीवन, नाउ वी हैव टू राइट डाउन द आंसर कि ये डिविजिबल है 2 से या नहीं। The main question is clearly stating, is it divisible by 2 or not? The answer is very clear and very straightforward to us, I am sure. The last unit digit is 9, correct? So the answer is no. This number, it is not divisible by 2. Why? तो उसका रीजन भी हमें देना ही चाहिए। As the unit digit is neither 0, ना ये आपका लास्ट वाला डिजिट 0 है, nor an even number। अगर आप देखो तो बच्चा लोग 0 के अलावा बाकी 2, 4, 6, 8 सब इवन नंबर्स है। तो कंडीशन सिंपल हुआ ना, आपका जो यूनिट डिजिट है या वो 0 होना चाहिए या फिर वो कोई भी इवन नंबर होना चाहिए। 0 इज नॉट एन इवन नंबर, इट्स नॉट नेवर काउंटेड एज ए इवन नंबर। सो इसीलिए हमने लिख दिया है कि देखो ये जो लास्ट डिजिट है 9, जो आपका यूनिट डिजिट है, दैट इज ना तो वो 0 है ना वो इवन नंबर है, इसीलिए ये नंबर 2 से डिवाइड तो नहीं हो सकता। सो दिस इज हाउ सिंपल द सम्स आर एवरीवन। Okay, now I'm just erasing this off. I will be discussing each and every divisibility test. आप लोग ऐसा कर सकते हो कि सारे divisibility test एक ही जगह पे आप एक साथ लिख देना, so that it will be useful for you to refer whenever you want to, right? चलिए, moving on to question number 2. The question is more or less going to be the same only. Find which of the following numbers are divisible by 3, and the first one is 777. Okay, now अब देखिए 3 का भी डिविजिबिलिटी टेस्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली। एंड व्हाट इज दैट कि कोई भी नंबर हमें दिया हो, ऑलराइट, लेट मी शो यू अ नंबर हियर। सपोज वी हैव द नंबर 729, करेक्ट? छोटा नंबर हो या चाहे इससे भी बड़ा नंबर हो, द बेस्ट पार्ट इज ऑल यू नीड टू डू इज, तुम्हें इस नंबर के सारे अलग अलग डिजिट्स को ऐड करना है। सो यू विल कैलकुलेट द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ योर नंबर। द डिजिट्स आर 7,
2 9, so 7 plus 2 plus 9. ओके, अब आपका जो भी आंसर आया, फॉर एग्जाम्पल इस सम में आंसर आया है 18. The sum of your digits, when you add all the digits, the sum of the digits should be a number which is going to be in the table of 3. क्योंकि हम चेक तो वही कर रहे हैं ना, हमारा डिविजिबिलिटी टेस्ट है 3 के बारे में. तो जो तुम्हारा सम ऑफ डिजिट्स है, अगर वो 3 के टेबल का वैल्यू है, यानी if it's a multiple of 3, then this entire number without dividing, we will be surely saying that yes, this entire number is divisible by 3. जैसे इस सम में 18 आया है जो मल्टीपल ऑफ 3 है, so we are very very sure 729 को डिवाइड करने की भी जरूरत नहीं है, it is definitely divisible by 3. Okay everyone, that is the logic and we will be using the same logic in this particular question. जब कभी भी तुम्हें चेक करना है कोई भी नंबर डिविजिबल बाय 3 है कि नहीं है, दिस इज द डिविजिबिलिटी टेस्ट. एंड माइंड यू, आप ये मत सोचना कि ये लॉजिक हर नंबर के लिए काम आता है, नहीं. दिस लॉजिक राइट नाउ वर्क्स फॉर 3 ओनली, अभी के लिए, एंड देन आई विल टेल यू लेटर ऑन कि अगर ये और कोई नंबर के लिए काम करता है कि नहीं करता है. ओके, ये पर्टिकुलर लॉजिक जो है वो तो 3 के लिए ही काम करेगा एवरीवन. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. The given number is 777. So first step should be calculating the sum of the digits. So we will say the sum of the digits of the number is 7 plus 7 plus 7. That is equals to 21. As you clearly know, 7 plus 7 plus 7 आपको 21 देता है. I will write down sum of the digits is equal to 21. The sum of the digits is equals to 21, which is a multiple of 3. You all very well know कि 3 के टेबल में 21 तो जरूर आता है. So therefore the number 777 is definitely divisible by 3 everyone. Okay, so that is the question 2 का second for you. Now let's move on to the fourth. The number is 2574. Okay everyone, the number given to us is 2574. Let's start. The logic is going to remain the same क्योंकि आपका क्वेश्चन अभी भी वही है कि इनमें से कौन से नंबर्स 3 से डिवाइड हो सकते हैं, आपको मैं ओरली देखकर बता देना है. वैसा मतलब you just have to use some technique, you cannot actually sit and divide, वो तुमको करना अलाउड नहीं है. Okay, so now everyone, 2574, let's calculate the sum of the digits. 2 plus 5 plus 7 plus 4, add all the digits. The answer is 2 plus 5 is 7. 7 plus 7 14, 14 plus 4 is equals to 18 everyone. So the sum of the digits is equals to 18, which again is a multiple of 3. A multiple of 3 means कि वो 3 के टेबल का वैल्यू है. 18 obviously is a multiple of 3 and therefore the number 2574 is automatically divisible by 3. Okay, alright everyone, so that is the simple question. Also साथ ही साथ मैं आपके साथ ओरली इसका एक और सम डिस्कस भी करना चाहूंगा. लेट मी डू दैट फॉर यू ऑल्सो. ये देखिए, हमने किया सेकंड और फोर्थ. Let's have a look at ये मतलब फर्स्ट और थर्ड तो जाने ही देते हैं. लेट मी गिव यू अ नंबर एंड लेट दैट नंबर बी 1660. ये वाला जो हमने सॉल्व किया था ना 1660,
मैं ये वाला नंबर लेके आपको बताता हूं, विल इट बी डिविजिबल बाय 3 और नॉट? द नंबर 1660 के लिए the sum of the digits is going to be 1 plus 6 plus 6 plus 0. So 6 plus 6 12, 12 plus 1 13, 13 plus 0 anyways is 13 only. तो अब आपके digits का sum आया 13, क्या 3 के टेबल में 13 आ सकता है? The answer is no, नहीं आएगा, and therefore this number is not divisible by 3. यहाँ पर हमको मालूम पड़ा कि yes it is divisible by 2, but 3 से ये नंबर डिवाइड नहीं हो पाएगा, कभी भी नहीं हो पाएगा. If you divide, you will always get some remainder. पूरा डिवाइड होगा नहीं, it will not give you a remainder 0. That is for sure. Okay everyone, so exactly divisible नहीं है. This is how you find it out. चलो moving on to the next one. Question number 3 now. Find which of the following numbers are divisible by 4 everyone. ठीक है, अब हमें ये देखना है कि जो भी नंबर्स हमें दिए गए हैं क्या वो 4 से डिवाइड हो सकते हैं कि नहीं हो सकते. एंड the first value that we are going to solve is the second part of this sum, that is 3180. आपका नंबर है 3180. Okay everyone, so let me discuss the divisibility test of 4 with you. अब देखिए, अब आपका नंबर चेंज हो चुका है. पहले हमने 2 का divisibility test देखा, फिर 3 का, and now we are looking at the divisibility test of the number 4. अब कोई भी नंबर चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सपोज आई गिव यू अ नंबर, ऐसे ही रैंडमली आपको दे देता हूं मैं 5720916, a huge number, right? अब इतने बड़े नंबर को हम सच में तो 4 से डिवाइड करने नहीं बैठ सकते, ये देखने के लिए कि क्या ये 4 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, right? If you just want to find out whether this number is going to be divisible by 4 or not, the simple technique is find out the number formed by the last 2 digits only. बस, that's it. और कुछ नहीं, पूरे नंबर को भाड़ में जाने दो, उसको भाव मत दो, सिर्फ और सिर्फ ध्यान दो the number formed by the last 2 digits. As you can see, the number formed by the last 2 digits here in this sum is 16. क्या 16 4 के टेबल में आता है, या क्या 16 4 से डिवाइड हो सकता है? The answer is yes. And because 16 is divisible by 4, this entire number is divisible by 4. हमें बाकी और कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं है. So that is the brilliant technique by which you can easily find out for any number. For such a huge number also we were able to find out. कितना simply हमने ढूंढ लिया ये. Okay? So in all the sums, use the same technique. So let's start everyone. आपके इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए the number formed by the last 2 digits needs to be found out. Number formed by last 2 digits is equals to everyone very clearly 80. Okay? And now you should know कि वो नंबर 4 से डिवाइड हो सकता है कि नहीं हो सकता, राइट? अगर आपको ये वाला सिंपल चेकिंग करना है तो कर भी सकते हो ना. 80 डिवाइड बाय 4 करने में कितना टाइम लगेगा? 4 2 8, ऑलरेडी 0 आ ही गया है, तो ये जो 0 बच गया है वो सीधा ऊपर ही चला जाएगा. ओके, सो वी हैव गॉट अ रिमाइंडर 0 एंड वी हैव गॉट द आंसर 20 आल्सो, व्हिच मींस रिमाइंडर 0 आया, मतलब ये पक्की बात है कि 80 डेफिनेटली 4 से डिवाइड होगा ही होगा. सिंपल. और कोई भी नंबर आया होता तो दिस इज हाउ यू विल चेक इट, एज सिंपल एज दैट. सो द नंबर फॉर्म बाय द लास्ट 2 डिजिट्स इज इक्वल्स टू 80 व्हिच is divisible by 4. And therefore everyone, the main number 3180 is also divisible by 4.
Okay everyone, so that is your answer, the second one, third का second one. Now moving on to the third का fourth. Another big number given to us 7756. ये हमें चेक करना है कि क्या ये नंबर 4 से डिवाइड हो सकता है कि नहीं हो सकता. तो इसमें हमें बहुत ज्यादा तकलीफ तो लेनी ही नहीं है कभी भी, राइट? यू जस्ट नीड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द नंबर फॉर्म बाय द लास्ट 2 डिजिट्स. सो द नंबर फॉर्म्ड बाय the last 2 digits is equals to everyone 56. अब 56 4 से डिवाइड होता है कि नहीं, आई एम नॉट वेरी श्योर. तो मैं एक काम करता हूं, डिवाइड करके देख लेते हैं. 4 1s are 4, रिमाइंडर 1 नीचे आ जाएगा 6 एंड वी डेफिनेटली नो 4 4s are 16. रिमाइंडर इज 0 which means के डेफिनेटली डिवाइड हो गया. ओके, सो नाउ 56 आया है जिसके बारे में हम लिखेंगे which is divisible by 4. Therefore the original number 7756 is divisible by 4. Okay everyone, so that is the full and final answer. Okay, now pause the video and copy down these solutions everyone. Okay, pause and chapo. Okay everyone, moving on to the next sum. Alright everyone, let's start. The next sum that we are going to do is the main question number 4. जिसका क्वेश्चन है find which of the following numbers are divisible by 5 now. Okay everyone, we are going very much in order. 2 से हमने देख लिया, 3 से हमने देख लिया, और 4 से नंबर कैसे डिवाइड होते हैं ऐसा चेक करना हो तो उसका शॉर्टकट टेक्निक हमने वो भी देख लिया. Now we have the next number in line, that is 5. So let's find out how to check whether a given number is divisible by 5 or not. This can be considered as simple as the divisibility test of 2, right? शायद उससे भी ज़्यादा simple. आइए जरा देखते हैं, directly start करते हैं with the number only. The number given to you in the third part is 39255. So we have to write down the reason, the answer as well, the reason as well कि क्यों divisible है या divisible नहीं है, वो भी तो हमें बताना चाहिए ना. Okay, so now here everyone
पूछा है क्या ये नंबर 5 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो कितना भी बड़ा नंबर हो या कितना भी छोटा नंबर हो, ओके, इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑफ द नंबर, इफ यू वांट टू सी कि वो नंबर 5 से डिवाइड हो सकता है कि नहीं, द ओनली थिंग यू विल चेक इज द लास्ट डिजिट, दैट इज द यूनिट डिजिट, दैट इज ऑल यू विल चेक। वैसे ही जैसे 2 में करते थे, राइट, फॉर द डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2, इफ यू रिमेंबर, कितना भी बड़ा नंबर हो हमें तो सिर्फ देखना है यूनिट डिजिट एंड देन वी डिसाइड। उसमें हम क्या करते थे 2 में, व्हाट इज द लॉजिक, जो भी आपका यूनिट डिजिट है वो या तो 0 होना चाहिए या तो 2, 4, 6 या 8 होना चाहिए, यानी सारे इवन नंबर्स चलेंगे या 0 चलेगा। सो आइदर द यूनिट डिजिट शुड बी 0 और एन इवन नंबर। इफ दैट इज द केस देन वी से कि हाँ अब ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। दैट इज अबाउट 2 राइट नाउ, ठीक है। लेकिन फिलहाल हम तो यहां डिवाइड कर रहे हैं, मतलब हम चेक कर रहे हैं इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 5 और नॉट। इन दैट केस द लॉजिक सेज आपका जो यूनिट डिजिट है इट शुड बी आइदर 0 और इट शुड बी 5, बस दैट्स इट। 0 और 5 ही होना चाहिए। अगर 0 या 5 में से कुछ भी है, या 0 है या 5 है, कोई भी एक अगर है इन दोनों में से, तो वो नंबर 5 से डिवाइड हो ही जाएगा। यू डोंट नीड टू चेक, तुम्हें पूरा डिवाइड करके देखने की तो जरूरत ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट देखो, 0 या 5 होना चाहिए। तो यहां पर आपका यूनिट डिजिट एग्जैक्टली 5 ही है, सो वी वेरी वेल नो दिस एंटायर नंबर विल बी डिवाइडेड बाय 5। सो आंसर लिख देते एवरीवन, यस, पहले तो लिख देते यस, दिस नंबर इज डिविजिबल, इट इज डिविजिबल बाय 5। अब इसका रीजन भी लिखेंगे क्यों। इट इज डिविजिबल बाय 5 सिंस द यूनिट डिजिट is 5. Okay everyone, that is the reason. Next is the fourth one. The number is 8204. Answer, हमें चेक क्या करना है, क्या ये नंबर 5 से डिवाइड होगा, वो हमें चेक करना है। तो हमें पूरा नंबर तो चेक करना ही नहीं है, हमें तो सिर्फ लास्ट डिजिट चेक करना है। नाउ वी चेक द लास्ट डिजिट और हमें मालूम पड़ा कि ये लास्ट डिजिट जो है वो है 4, पर हमें चाहिए था कि वो होना चाहिए या तो 0 या तो 5। सो नाउ वी विल से एंड वी विल क्लेम दैट नो, दिस नंबर is for sure not going to be divisible by 5. As the unit digit is not 0 और 5. ओके, ये 0 या 5 में से कुछ भी नहीं है ना, बस, तो फिर ये 5 से डिवाइड नहीं ही हो सकता। Okay, so that is the divisibility test of 5 everyone. चलिए, moving on to the next one, the main question number 5. यहाँ है find which of the following numbers are divisible by 10. ओके, अब कैसा है, जैसे जैसे हम ऑर्डर में जा रहे हैं, अगर हम 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट देखें, 2 का, तो उसमें ऐसा था कि आपका यूनिट डिजिट होना चाहिए 0, 2, 4, 6 या 8। 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट इससे भी ज्यादा इजी हो गया कि सिर्फ 2 ही डिजिट्स का रिक्वायरमेंट है
और वो है या तो 0 या तो 5। नाउ वी कम टू 10, जो इससे भी एक लेवल और इजी हो गया, बिकॉज द यूनिट डिजिट ओनली शुड बी जिलो, दैट्स इट, वही होना चाहिए। यस, इट इज एज सिंपल एज दिस। जो भी नंबर हम देखेंगे, अगर उस नंबर का यूनिट डिजिट यानी लास्ट वाला डिजिट अगर 0 निकला, तो वी से दैट द नंबर बाय डिफॉल्ट फॉर श्योर इज डिविजिबल बाय 10, पक्का। if the digit is not 0 छोड़ के और कोई भी डिजिट होने दो, कोई भी, that number can never be divisible by 10. Okay, so very simple test. Let's check the numbers and write the answers. First one is 5100. So answer में हम लिख देंगे yes, this number is यानी it is divisible by 10. The reason is as its unit digit is 0 everyone. Okay, आपका ये यूनिट डिजिट आप चेक कर लो 0 है, इसीलिए ये नंबर पक्का डिविजिबल बाय 10 है। नेक्स्ट, let's check the next one. Next one is the second one. The number is 4612, and now we have to write the answer कि ये नंबर 10 से डिवाइड होगा कि नहीं। इसका यूनिट डिजिट आप चेक कर लो। The answer is the digit is 2, and हमारा रिक्वायरमेंट है अगर 10 से डिवाइड कोई नंबर को होना है तो उसके यूनिट डिजिट होना चाहिए 0। So here we will claim that no, this number is not divisible by 10 as the unit digit is not the unit digit is not 0 नहीं है। Okay everyone, that is the reason, hence the number is not divisible by 10. Okay, so that was the fifth one for you. Now moving on to the most important divisibility test, that is the sixth question. Question है find which of the numbers find which of the following numbers are divisible by 11. Okay, this is the most important and the most interesting divisibility test. इसका एक थोड़ा स्लाइटली लंबा प्रोसीजर है, कैन नॉट हेल्प इट, प्रोसीजर तो वही रहने वाला है। Now, here need to explain you the logic, the method actually, not the logic, the method. Okay everyone, now let me give you an example, तो आपको बहुत ज़्यादा easy भी पड़ेगा to समझने के लिए, to understand. 14641 is a number which I want to check कि ये नंबर क्या 11 से डिवाइड होता है कि नहीं। नंबर थोड़ा बड़ा है तो एक्चुअली डिवाइड करके तो नहीं देखना चाहता मैं। ओके, आई कैन डू दैट, एज यू नो आई कैन डेफिनेटली डू दैट, 11 से फटाफट डिवाइड भी कर सकते हैं, बट if there is some oral technique, we should definitely mental technique, sorry, if there is a mental technique which can give you the answer orally, so you should definitely try that out. चलिए वो टेक्निक है हमारे पास। Now everyone, the technique is there is a step by step procedure, तो आपको स्टेप्स बराबर समझ लीजिए और याद रख लीजिए। Step 1 is find the sum
of the digits in the odd places. अब आपको यही सब समझना है, ये odd places क्या है, even places क्या है. Okay everyone, ये देखो, find the sum of odd places. What does that mean? आपके इस नंबर में फर्स्ट डिजिट कौन है? तो फर्स्ट डिजिट है ये 1. सेकेंड डिजिट कौन है? अगर हम लाइन से जाए तो सेकेंड डिजिट है ये 4. थर्ड डिजिट कौन है? तो वो है 6. फोर्थ डिजिट है 4 और पांचवा यानी फिफ्थ डिजिट है 1. सो दीज आर द प्लेसेस ऑफ द डिजिट्स. ये उनकी जगह है, डिजिट नहीं है, जगह है. जैसे कि अगर कोई मुझे पूछता है विच इज द डिजिट एट द थर्ड प्लेस, तो मैं बोलूंगा फर्स्ट सेकेंड थर्ड. थर्ड प्लेस पे है 6, डिजिट 6 है पर उसका प्लेस है थर्ड 3. वैसा अब सम ऑफ ऑड प्लेसेस मतलब यू चेक विच आर द ऑड प्लेसेस. ऑब्वियसली द ऑड प्लेसेस आर 1, 3 एंड 5. तो हमें ऑड प्लेसेस पे जो भी डिजिट्स है उनका टोटल लेना है, सम लेना है. ओके, सो दैट इज 1 plus 6 plus 1. एक्चुअली इट इज वेरी पॉपुलरली रिमेंबर्ड लाइक दिस कि आपको ऑल्टरनेट डिजिट्स को ऐड करते जाना है. यानी अगर आप 1 से स्टार्ट करोगे फिर आपको 6 को ऐड करना है, फिर 6 के बाद वापस आपको 1 को ऐड कर देना है. ओके, सो यू विल ऐड लाइक दिस. दैट इज इजी टू रिमेंबर एज वेल. ओके, ये हो गया तुम्हारा सम ऑफ ऑड प्लेसेस और आंसर आ गया है 8. स्टेप 2, जैसे आपने ऑड प्लेसेस का सम ढूंढा वैसे अभी ढूंढो सम ऑफ इवन प्लेसेस. तो इवन प्लेसेस जो बाकी है वही होते हैं, और क्या है ना. ऑब्वियसली जो ऑड निकल गए तो बचे इवन प्लेसेस है. सो 4 plus 4, द आंसर is 4 plus 4 and that is equal to 8. And now comes the last and the final step, step 3. You have to find out the difference of the two answers that you got in step 1, step 2. Okay, step 1 में आंसर मिला 8, step 2 में आंसर मिला 8 ही. अब लेना है आपको डिफरेंस. डिफरेंस मींस क्या? माइनस करोगे. So 8 minus 8, the answer is 0. Now mind you, यहां आपका डिविजिबिलिटी टेस्ट हो गया खत्म. अगर आपका डिफरेंस का फाइनल आंसर 0, 11, 22, 33 ऐसा कुछ भी आया, इन अदर वर्ड्स जो भी आपका फाइनल आंसर है अगर वो 11 से डिवाइड हो सकता है, क्योंकि देखो 0 भी 11 से डिवाइड हो सकता है. देयर इज अ मिस्टेक दैट जनरली पीपल मेक. उन लोगों को लगता है 0 11 से डिवाइड नहीं हो सकता. माइंड यू, 0 किसी भी नंबर से डिवाइड हो सकता है सिवाय खुद 0 के. दैट इज नॉट अलाउड. 0 divided by 11 of course is 0. 0 divided by 5 भी हो सकता है, that is also 0. It gives you some answer. आंसर दे रहा है तो इसका मतलब डिवाइड हो सकता है. So everyone you should remember, डिफरेंस लेने के बाद जो आंसर तुम्हें आया अगर वो 0, 11, 22, 33, 44, 55 ऐसा कुछ भी है तो ये तुम्हारा पूरा नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा. हमको यहाँ आंसर आया है 0 and therefore everyone I will say this number definitely is divisible by 11. Now see, टेक्निक एक्सप्लेन करके लिख कर सॉल्व करने में वैसे लगता है बहुत लंबा, और हमें अगर माइंड में करना है तो फटाफट हो सकता है. हमने माइंड में अगर कैलकुलेट कर लिया होता 1 plus 6 plus 1 is 8, 4 plus 4 is 8 and 8 minus 8 is 0. So you understand कि नंबर 11 से जाएगा ही जाएगा. You can definitely divide it by 11 and you will definitely get an exact answer. वैसा. So the techniques are that way, but you have to put it on the paper. ना तुमको तो बताना पड़ेगा कि देखो हमारा लॉजिक जो हमने फॉलो किया हमारे माइंड में वो ये है. For that purpose you have to write down all the steps properly in an order. Okay everyone, so that is called as the divisibility test of 11. Now we start solving the sums based on this technique. सबसे पहला नंबर जो यहां दिया है that is 2563. So everyone, आंसर ढूंढना शुरू करते हैं. पहले therefore sum of odd places, the answer is, ये देखो स्टार्ट फर्स्ट डिजिट से करो और एक छोड़ के दूसरे डिजिट पे जाओ. दैट इज 2 plus 6. The answer is 8 everyone. Next, sum of even places 5 plus 3. The answer is
5 plus 3 is equals to 8. Okay everyone, the answer is equals to 8. So sum of odd places is 8, sum of even places is also 8. As you know, step 3 होता है to calculate the difference. डिफरेंस हमेशा होता है बड़ा वैल्यू माइनस छोटा वैल्यू वैसे तो, पर यहाँ पर आया है 8 और वहां पर क्या आया है 8. सो ऑब्वियसली कोई बड़ा वैल्यू है नहीं, कोई छोटा वैल्यू है नहीं. द डिफरेंस इज 0 व्हिच यू विल राइट डाउन व्हिच इज डिविजिबल बाय 11. मतलब ये जो डिफरेंस आया है, डिफरेंस का आंसर 0 आया है जो 11 से पक्का डिवाइड होता है. देयरफॉर द मेन नंबर, द एक्चुअल नंबर 2563 is also divisible by 11 everyone. That is the final answer of your 6 ka first part. Now we have the third one. The number given to you here is 95635. 95635. Okay, so let's start. ढूंढते हैं इसका आंसर एवरीवन. सो स्टार्ट विथ सम ऑफ ऑड प्लेसेस. ऑड प्लेसेस में आप यहां से स्टार्ट करो, एक नंबर छोड़ के जंप करते जाना. तो आप पहले इन दोनों को ऐड करोगे एवरीवन, फिर इन दोनों को ऐड करोगे. यानी इन ऑल यू आर गोइंग टू ऐड 9 plus 6 plus 5. 9 plus 6 plus 5. Okay. The answer is 9 plus 6 15, 15 plus 5 20. Next, sum of even places now. Sum of even places में आएगा ये 5 plus 3 and that is equals to 8. Correct everyone? Now finally you have to calculate difference of these two values. So as I told you, difference यानी बड़ा वैल्यू माइनस छोटा वैल्यू होता है. सम ऑफ ऑड प्लेसेस बड़ा है 20 है, इवन प्लेसेस का सम 80 है. सो इट्स 20 minus 8 which is equals to 12 everyone. 12. अब हमें पता है 12 is definitely not divisible by 11. So therefore जो नंबर था आपका 95635 is also not divisible by 11. Okay everyone, that is the full and final answer, and with this we complete your exercise 5C. Okay everyone, so in this video session particularly, as we see, we have done a revision of the old topics only. How to check the divisibility of a number by 2, how to check the divisibility of number by 3, 4 का क्या टेक्निक है, 5 का क्या टेक्निक है, वैसा. ओके, लेट्स हैव अ वेरी क्विक रिकैप फटाफट से. 2 के लिए क्या होता है डिविजिबिलिटी टेस्ट? द यूनिट डिजिट शुड आइदर बी 0 और एनी वन नंबर, यानी 0 2 4 6 8. यूनिट डिजिट अगर इनमें से कुछ भी हुआ तो द नंबर इज डिविजिबल बाय 2. दैट वाज द सिंपल टेक्निक. उसके बाद डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3. व्हाट वाज द डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3 सेइंग? आपका जो पूरा नंबर है उनके डिजिट्स को कर दो ऐड, सब डिजिट्स को ऐड कर दो. सो टेक द सम ऑफ ऑल द डिजिट्स. इफ योर आंसर इज अ मल्टीपल ऑफ 3, यानी वो 3 के टेबल में आता है, सम ऑफ डिजिट्स करने के बाद जो आंसर आया वो 3 के टेबल में अगर आता है तो द एंटायर नंबर इज डिविजिबल बाय 3. नेक्स्ट इज 4. 4 के लिए you just need to concentrate on the number formed by the last two digits. You don't have to take the entire number. हम सिर्फ देखेंगे the number formed by last two digits. If the number formed by those last two digits is divisible by 4, then the entire number is divisible by 4. Next is your digit 5. How to find out divisibility of any number by 5? The unit digit, that is the last digit, should either be 0 or 5 only. इन दोनों में से ही कुछ चलेगा और कुछ नहीं चलेगा. जैसे यहाँ 4 था तो no, it is not divisible by 5 क्योंकि लास्ट डिजिट 0 या 5 में से नहीं है. उसके बाद we moved on to 10. Simple logic. If unit digit is 0, then it is divisible by 10. If it is not 0, then it is not divisible by 10. And then finally 11. 11 के लिए as you know there is a 3-step procedure. Find sum of odd places.
find the sum of even places and then take a difference of these two answers. जो final answer तुम्हारा आएगा difference का, if that is divisible by 11, then the entire number is divisible by 11. And if that is not divisible by 11, जैसे इस समय हुआ, तो this entire number is also not divisible by 11. Okay everyone? Alright, so once I move out from the frame, you will pause the video and you will copy down all the solutions, and I'll catch you in the next video where we will be solving your exercise 5D everyone, because it's a continuation of exercise 5C. Okay? Alright everyone, so take good care of yourself. Bye bye.